Hi everyone. It's a proud moment for us today that we have Rudransh Kishore, who is All India rank 190. Welcome, Rudransh. Thank you, sir. And along with Rudransh, we have his father. Sir, welcome to you also. Thank you so much, sir. So, sir, it's a proud moment for us, I'm sure, and it is a proud moment equally for you also, right? So, just want to understand that what is your feeling when you got to know that Rudransh has cracked the, NDA written as well as he got recommended. So even when you're talking about it, I've got goosebumps talking about it also. So that feeling never dies. It's still it's very surreal experience that we were not expecting him to clear the exams in his first attempt while doing his plus two. Honestly, I was not ready for that. I was thinking, okay, he's preparing, maybe clear one part of it, one aspect of it, and we'll have to work another year. So clearing in the first attempt was beyond words, step by step. Writtens got cleared. I was still apprehensive. I think I was the only one who was not very happy, emotionally showing outwardly. Then came the SSB, cleared SSB, then when the medicals got cleared, then got the ranks, and that is the time I thought, okay, now he's done something. I think that was the only time I told him, okay, you have done something, you have achieved something, let's work now. Right. So the journey has now started for him. Absolutely. Actually, it's a long journey, and each phase is a very it takes a lot of task, lot of effort. You clear the NDA return, then comes the SSB part of it, and then even medical is also a Herculean task, though we don't have to do much, but it drains lot of energy. So sir, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये इस पूरे इंटायर प्रोसेस में इन हिज इंटायर जर्नी आपका इसको क्या गाइडेंस था कि कैसे हाउ शुड यू प्रिपेयर सो दैट, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मेंटर करना चाहते हैं बट दे डोंट नो व्हाट इज समथिंग दे शुड एक्चुअली बी डूइंग एज अ पेरेंट. सो हमारा जो रोल है, मैं वो चाहता हूँ कि आप अगर हमारे ऑडियंस को ये सब चीज़ें बारे में बताएं. So, as a father, there are 3 things or 4 things जिसको मैंने उसको divide किया था. Most importantly, obviously, is your NDA written examinations. So fortunately, my background is from education. I've been teaching, running my own institutions. So when I heard that Nimbus has started doing, or you guys were doing it before also, but when I came to know that in Nimbus जो है वो defense में भी है preparation के लिए, तो there was no second thought about it. Nimbus was my first choice. So we came, and the moment we met you and Ajay sir, we came to know that I don't now have to worry about his education part of it. So education, I can vouch for that is one of the best mentorship for education, and because of the mentorship programs you have and the special, I would say, attention being provided as required to each and every student during his plus 1 and plus 2 has been an immense help for clearing his written examinations. Same goes for SSB, though apart from doing SSB from academically from Nimbus Academy, since my younger brothers are in defense, they were mentoring him here and there. But that was like once before going to the SSB, probably 6 hours. So I would just call it a brush up rather than preparation. So preparation wise also, your academy has supported him immensely. From my end, what my perspective was for 3 years, where I came to know in 8th standard that he wants to go into defense. I gave it a year. As a parent, I would say to other parents जिनके बच्चे बोल रहे हैं कि हमें डिफेंस में जाना है, 8th स्टैंडर्ड में अगर आपका बच्चा बोलता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, दैट मीन्स हिज करियर इज 80% सेट. 9th में अगर वो बोलता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो यू हैव टू से टू योरसेल्फ कि हाँ, मेरा बच्चा डिफेंस में रेडी है जाने के लिए, क्योंकि 8th और 9th में 1000 बार चीज़ें बदलेंगी. और अब मेरी ड्यूटी एज अ फादर ये थी कि जब इसने 9th में बोल दिया कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो आई केप्ट हिम मोटिवेटिंग, बिकॉज ही व्हाट्सएप के ऊपर था. द फर्स्ट थिंग वी डिसाइडेड, वी स्टार्ट विद हिम, वी टोल्ड हिम कि बेटा, यू विल नॉट बी एनीवेयर इन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. राइट. फेसबुक पे अकाउंट इसका कभी था नहीं, हमने बनने नहीं दिया, और इसने खुद भी नहीं बनाया. राइट. बी इट इंस्टाग्राम, be it Facebook, be it YouTube, be it any other social platform, there are immense social platforms जिनके बारे में हमें भी नहीं पता है. तो पहली मेंटरशिप ये रहेगी, अगर बेटा है या बेटी है, 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हमें उनके सोशल मीडियाज को बंद करना पड़ेगा.
और वो हमें ज़बरदस्ती बंद नहीं करना है। जो अब जाके जो मैं आफ्टर एक्सपीरियंसिंग आई कैन से ऑन हाइंडसाइट इज दैट even if you see the old joining instructions from NDA Academy, one of the few things written over there is you should not have any social media accounts, you should not have any tattoos, and there is a list of social media platforms which are banned by NDA. Right. So agar if we discuss that with our children in a very beginning stage, even in 8th or 9th standard, कि बेटा ये सोशल मीडियाज पे आप इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज आपका एम एनडीए है और एनडीए में ये अलाउड नहीं है. It will be easier for your children or my children to understand कि मुझे क्यों नहीं करना rather than वो चीज़ थोपने की. So my first thing was continuously over the period of time not to let him get onto the social media platforms. So that was the first thing. Second thing, I have been telling him again and again to celebrate small wins. We are not running out, we are doing a marathon, we are not doing a 100-meter sprint. So we have to always celebrate the small wins. मार्क्स अच्छे आए, एनडीए के किसी टेस्ट में अच्छे आए, तो मैंने इससे कभी ये नहीं पूछा कि बेटा कितने मार्क्स आए. मैं हमेशा ये पूछता था कि क्या इससे ज़्यादा आ सकते थे, चाहे वो 10 में से 9 थे या 10 में से 5 थे, डज नॉट मैटर फॉर मी. इट इज़ कि क्या तुम्हारी प्रेपरेशन थी इससे ज़्यादा लाने की. बहुत बार इसने बोला कि यस थी, तो क्यों नहीं आए. Go back, read the questions, analyze it, talk to your mentors in the school, in the college, and see why वो आपको आने के बावजूद भी ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ. So rather than we have to as a parent change our thought process from saying कि और मार्क्स आ सकते थे to क्यों नहीं आए. रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एसएसबी में जब ये जाता है, गया था और जब इसने मुझे बताया कि एसएसबी में कैसे कैसे हुआ है सब कुछ, तो इट इज़ आवर एज अ पेरेंट्स जो हमने 2-3 साल मेहनत करी है इन बच्चों के साथ मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, वो बहुत काम आती है. ट्रू. सो इट इज़ एंड वी हैव टू कीप देम ऑन ट्रैक. बहुत बार होता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, आज थक गए, आज बस हो गई, आज बहुत एक्सरसाइज करवाई, तो क्या हुआ. आपकी किसी ने आपके अगर बच्चे चाह रहे हैं कि डिफेंस में जाना है, उसका मेजर रीज़न ये है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई डिफेंस में है. लेट देम टॉक टू योर किड्स. If you are not in defense, ask anybody else in your family to talk to your child about defense. They will tell him कि बेटा जो आप अभी बोल रहे हो ना बस होगी, यहाँ से तो कहानी स्टार्ट भी नहीं हुई है. स्टार्ट होता है. राइट. So that external motivation is very important. And as a parent, it is very important to say to your child कि sorry, I don't know. If you don't know something, do not be afraid to say sorry, I don't know. Right. And that is my go-to answer whenever I don't know anything. बेटा ये सर से पूछ ले, मुझे नहीं पता, या सुबह पूछना, मैं यूट्यूब से ढूंढ लूंगा या गूगल पे सर्च कर लूंगा या अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लूंगा. सो वी हैव टू किल अवर ईगोस सो दैट दे अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव. इट्स देयर लाइफ. ट्रू. एंड डिफेंस में तभी भेजना जब वो बच्चा चाहता है, ना कि क्योंकि मैं नहीं जा पाया. A lot of people come to me also for counseling and I keep talking to them and I realize that parents says कि सर मेरा SSB क्लियर नहीं हुआ था, मैं चाहता हूँ बच्चा करे. बच्चे से बात करो, सर मुझे नहीं जाना, पापा कह रहे हैं, वो कभी नहीं क्लियर होगा, आप बच्चे के 4 साल वेस्ट करोगे. ये जो पॉइंट सर आपने अभी जो लास्ट में बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो सपने अपने पूरे नहीं हुए, वो अपने बच्चों में वो सपने पूरे करने के लिए कभी कभी उनको वैसा उन पे एक एक्सपेक्टेशन थोपते हैं. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. आई थिंक वी शुड गो विद द फ्लो. अगर हमें लगता है कि बच्चा दिल से चाहता है कि किसी चीज़ में मैं इस करियर को ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो एज अ पेरेंट्स इट इज़ आवर रोल कि हम उसको सपोर्ट करें. दूसरी चीज़ जो आपने बोला, छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. यस, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. एंड अगर आपको नहीं कुछ चीज़ का पता, तो बहुत सारे पेरेंट्स ये फील करते हैं कि मैं अपने बच्चे की सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ. आई थिंक इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, आपको नहीं पता, आप बच्चे को सही डायरेक्शन में किसी के पास लेके जा सकते हैं, किसी करियर काउंसलर के पास लेके जा सकते हैं. नहीं तो आप खुद से इन्वॉल्व होकर उन चीज़ों को ढूंढ कर बच्चे को आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं. मे बी दिस इज अगेन वन थिंग विच पेरेंट्स विल डू. एक तो वो अपनी उनकी मोटिवेशन बनी रहेगी कि हाँ हम बच्चे के लिए सही चीज़ कर रहे हैं. So these 3 points, I think these are very important points, सर. आप लेके आए. आप अभी जैसे रुद्रांश का रिजल्ट आया और इट्स आई एम श्योर आप फैमिली के लिए तो प्राउड मोमेंट है ही नहीं, बट है ही, बट प्लस सोसाइटी में भी जो लोग हैं वो भी दे स्टार्ट कमिंग अप, क्योंकि
इट्स नॉट ओनली आपकी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है, ये पूरी सोसाइटी के लिए लोकेलिटी सोसाइटी व्हिच इज बिहाइंड यू। तो कोई ऐसा छोटा सा कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ जहाँ पे आपको लगा कि ये मतलब यू नो सर थोड़े नहीं बहुत। आई वॉज आउट ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम जब इसका रिजल्ट आया था 190 रैंक। सो माई ब्रदर हु इज एडवोकेट इन माई होम टाउन, तो उसने अपने फ्रेंड सर्कल में बात करी होगी कि भी मेरे माय नेफ्यू हैज स्कोर्ड 190 रैंक। सो somebody told and went and told the newspaper. Things came in the newspaper. Right. They came on the websites. Then I was tagged on my Facebook. And suddenly I saw there are like 1,000 some odd Facebook comments from people जिनको ना मैं जानता हूँ ना मैं पहचानता हूँ। Right. और कभी नाम नहीं सुना। It's congratulations, we are proud of you, we are proud of you बेटा। और जब मैं वापस अपने होम टाउन गया हूँ और जब मैंने फ्रेंड सर्कल से बात करी तो इट वाज लाइक कि यार हाँ ये मेरे को जानते हैं, मैंने उनको सेंड किया था, वो होशियारपुर के हैं, वो यहाँ के हैं, वो यहाँ के हैं। सो बेसिकली द पीपल हु डोंट नो हिम और हु डोंट नो मी बट दे आर फ्रॉम द सेम टाउन आर मोर प्राउड ऑफ हिम टू जॉइन द डिफेंस, आई वुड से, देन ऑब्वियसली नोबडी इज मोर प्राउडर देन मी बट दे आर प्राउड ऑन द सेम लेवल। मतलब वो अब लोगों को बता रहे हैं कि हमारे शहर से बेटा हमारा बच्चा जो है वो 190 रैंक लेके आया, तो वो हमारा बच्चा हो गया, ये अब ये मेरा बच्चा नहीं है, ये हमारे टाउन का बच्चा हो, ये हमारा बच्चा हो गया। सो दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग टू फील, टू बी प्राउड ऑफ when your son becomes somebody else's son, right. when I am known by his name. Absolutely. I think हर फादर का एक इच्छा होती है कि वो उसका बेटे के नाम से आप जाने जाए। तो रुद्रांश, once again congratulations to you and congratulations to you sir. Thank you for joining us. Thanks sir. So this insight, I'm sure this is very helpful for our audience जो parents जानना चाहते हैं कि हम क्या करें। तो thank you very much. Thank you sir. Thank you.